یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ دیور کی جمعرات بازار میں لنڈے کی دکان تھی اور وہ وہاں گرم کپڑے بیچتا تھا۔ ایک روز دوپہر کو دوڑا دوڑا گھر آیا اور کہنے لگا، بھابھی یہ اوور کوٹ ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کوٹ پکڑ کر اسے سراہا کیونکہ وہ سچ میں کسی اربن کا بہت ہی خوبصورت کوٹ تھا۔ دیور مجھے کچھ اور بھی بتانے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں تھی کہ کوٹ کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی تھی۔ دیور میری پسندیدگی دیکھ کر کہنے لگا، بھابھی یہ آپ اپنے شوہر کی موجودگی میں ہی پہنا کرنا، پھر دیکھنا اس کا کمال۔ اگر آپ نے ویسا پہنا تو پھر میں روز شوہر کے آنے سے پہلے وہ کوٹ پہن لیتی تھی، جسے دیکھتے ہی شوہر مجھ سے فرمائش کرنے لگتے تھے۔ ایک روز شوہر دوسرے شہر کام کے سلسلے میں گیا تھا کہ میں نے وہ کوٹ پہن لیا اور اس رات میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اربن عورتیں۔ میرا نام دریدن ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بے حد لاڈلی تھی۔ میری عمر 21 برس تھی جب امی کو میری شادی کا خیال آ گیا کہ جلد از جلد وہ میری شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ شادی کے نام پر میرے دل میں بھی کئی ارمان جاگ اٹھے۔ ہر لڑکی کے ہی اس دن کے لیے کئی خواب ہوتے ہیں کہ اس کا ہم سفر کیسا ہوگا، اس کی نئی زندگی میں کیا ہوگا۔ میں بھی انہی چیزوں میں گم تھی۔ شادی تو تب ہی ہو سکتی تھی جب ہمارے گھر سے غربت کے ڈیرے ختم ہوتے، کیونکہ غربت نے بے حال کر دیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملتی تھی۔ میں گو کے لاڈلی تھی مگر اپنی ضروریات کو محدود رکھتی تھی تاکہ امی ابو پریشان نہ ہوں۔ میری آواز بہت سریلی تھی۔ ہمارے ہمسایوں میں ایک دن محفل میلاد تھی کہ پڑوسن امی سے کہنے لگی کہ اپنی بچی کو بھی ساتھ لے کر آنا، اس کی بھی ایک آدھ نعت سنوں گی، تیری بچی کی آواز بہت ہی کمال ہے، اللہ نے اس کی آواز میں شفا رکھی ہے، چاشنی کی طرح میٹھی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگ میری آواز پہ وارفتہ تھے۔ شام کے وقت محفل تھی۔ میں اور امی اس خالہ کی طرف چلے گئے جہاں پورے گاؤں کی عورتوں کی محفل جمی تھی۔ کچھ پڑھنے میں تو کچھ دوسرے کے اعمال نامے دھونے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں آ کر ہی اپنی باتیں یاد کیوں آتی ہیں۔ خالہ نے اچانک مجھے آواز دی کہ دریدن ادھر آ بیٹا اور اپنی آواز میں کوئی نعت سنا دے۔ پہلے تو میں گھر میں ہی پڑھتی تھی، پھر امی کے اشارے سے آنکھیں میچ کر کے یہاں بھی پڑھنا شروع کر دی۔ جب نعت ختم ہوئی تو سبھی عورتیں میرا منہ ماتھا چوم کر دعائیں دینے لگی کہ بہت اچھی آواز ہے تمہاری۔ ہم لوگ گھر واپس آنے لگے تھے کہ خالہ نے روک لیا اور میری مٹھی میں 2000 تھما دیے کہ تو نے میرے گھر میں رونق لگا دی ہے۔ اس شان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا ہے کہ کوئی بھی نہیں لیتا، یہ تمہارا انعام ہے۔ میں نے منع کیا لیکن خالہ نے زبردستی تھما دیے۔ امی تو خوش تھیں کہ چلو کچھ پیسے آ گئے ہیں، ورنہ پچھلے کئی دنوں سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ جب سے میں یتیم ہوئی تھی تب سے ہی ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی۔ کوئی رشتہ دار تعلقات والا مدد نہیں کرتا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنی روٹی پوری ہو جائے تو بہت ہی کجا ہے کہ دوسرے کی مدد کرنا۔ اب گاؤں میں جہاں بھی محفل ہوتی تھی مجھے ضرور بلایا جاتا تھا۔ عورتیں بچے سبھی میری نعت بہت شوق سے سنتے تھے اور جاتے ہوئے کچھ کھانا اور پیسے خوشی خوشی گھر والے دیتے تھے۔ اللہ نے ہمارا روزگار بنا دیا تھا کہ اب فاقے نہیں رہے تھے۔ امی خوش تھیں کہ اب بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ میں نے تو کبھی اللہ کے نام پر کچھ سنا کر پیسے نہیں مانگے تھے۔ یہ لوگوں کی محبت تھی جو مجھے بلا کر عزت اور احترام کے ساتھ چند پیسے اور کھانا دیتے تھے۔ جب قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ہماری بے کسوں کی نہ سنتا۔ ایک بار گاؤں میں چودھریوں کے گھر بہت بڑی محفل تھی۔ ہر بار کی طرح مجھے اس محفل میں بھی بلایا گیا تھا۔ جب میں نعت خوانی سے فارغ ہوئی تو ایک ادھیر عمر کی خاتون میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے میرا نام پتہ پوچھنے لگی کہ وہ مجھے ملنے میرے گھر آئے گی۔
अम्मी ने इसे घर का एड्रेस, नाम वगैरह बता दिया, जिसके हक में मैं बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा था कि दोस्त ही दुश्मन निकल आता है, और ऐसे में अजनबी पर यकीन करना गोया अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने का नाम है। कुछ दिन गुजरे थे कि वही औरत घर आ गई और आते ही मेरा माथा चूमकर कहने लगी, बेटी बहुत प्यारी बच्ची हो तुम, और इतनी नेक बच्ची पूरे गांव में नहीं देखी। तुम बहुत बख्तों वाली हो सकीना, जो ऐसी औलाद मिली है। बातों बातों में इस औरत ने बताया कि इसके 2 बच्चे हैं, दोनों ही जवान हैं, शादी के लायक हैं। एक बाजार में दुकान लगाता है, जबकि दूसरा किसी दफ्तर में काम करता है। वो औरत अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई थी। अम्मी तो हैरानगी के साथ साथ खुश भी थी कि घर बैठे अल्लाह ने इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया है। इस औरत की मुझे बातें पसंद नहीं आई थी। इसके जाने के फौरन बाद ही मैंने अम्मी से कहा कि अब ऐसा कोई काम ना करिएगा, एक तो आप हर किसी पे यकीन कर लेती हैं। अम्मी ने कहा, तू मेरी माँ ना बनाकर 4 पैसे क्या कमाने लग गई है, अब मुझे आदाब सिखाएगी। मैं तो अम्मी को सुनकर ही दम खुद हो गई कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो अम्मी इस तरह मुझे झिड़क रही हैं। खैर, मैंने अम्मी को कुछ भी कहने से गुरेज किया कि कहीं वो बुरा ही ना मान जाए और मुझसे नाराज होकर ना बैठ जाए। मेरे पैसों में से अम्मी अब पैसे बचाकर मेरे जहेज की चीज़ें खरीदने लगी थी। इस औरत का कई बार हमारे घर चक्कर लगना अम्मी को मुतमईन कर चुका था। अम्मी तो रिश्ता करने के हक में थी। एक दिन अम्मी बीमारी का बहाना करके इस औरत के घर चली गई और वहाँ इसके बेटे और घर को देख आई थी, और यही नहीं, मेरा रिश्ता भी पक्का कर आई थी। अम्मी को वो लोग बहुत पसंद आए थे। घर आकर अम्मी ने तो इनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। मुझसे अम्मी ने रजामंदी पूछी तो मैंने बस इतना जवाब दिया कि अगर आप खुश हैं तो मुझे क्या एतराज़ होगा। अम्मी ने बताया कि इन्होंने मेरे लिए बड़े बेटे को पसंद किया है। वो संजीदा है, जबकि छोटा इनको लाउबाली तबीयत का लगा था। शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी। मैंने शादी के करीबी दिनों में महफिलों में जाना छोड़ दिया था। इस औरत ने जहेज लेने से भी मना कर दिया था। इसके बावजूद भी अम्मी से जितना बन पाया इन्होंने मुझे दिया था। मेरी शादी के बाद शर्त थी कि मैं हर माह अपनी माँ को खर्च दूंगी, लेकिन वो भी मैं अपनी कमाई से दूंगी, शोहर की जेब खर्च में से कुछ भी नहीं दूंगी। मेरी सास को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था। मेरी शादी इब्रार से हो चुकी थी। मेरी सास का कोई भी रिश्तेदार मुझे देखने आता तो मेरे हुस्न की बहुत तारीफें करता कि दुर्योधन के चेहरे पर तो नूर चमकता है। जैसे मेरी सास कहती कि वो अल्लाह के बहुत करीब है, बस इसी का फजल है। मेरा शौहर बहुत अच्छा और नेक सिर्फ इंसान था। इसने मुझे घर घर महफिल पढ़ने से मना कर दिया था। अगर तुम पैसों के लिए करती हो तो फिर ज़रूरत नहीं है, मगर तुम शौक और अल्लाह की खातिर करती हो तो मुझे एतराज़ नहीं है। मैंने कहा ठीक, मगर वो शायद मेरी बात समझ चुके थे। तभी कहने लगे कि अम्मी के खर्च की फिक्र नहीं किया करो, वो भी मेरी माँ है, मैं इनको भी करूँगा, और मुझे तो फख्र है कि मैं 2 माँओं का बेटा हूँ। शौहर के लिए मैं बहुत दुआएं करती थी। जब से शादी हुई थी मेरा छोटा देवर तो मुझे भाभी भाभी कहते ना थकता। सुबह काम पे जाने से पहले और शाम को आने के बाद पहले मुझसे मिलता था। अम्मी तो कहती थी, अदन मुझे लगता है तुम इसकी दूसरी माँ हो। भाई तुम इसको नजर ना आओ तो पूरा घर सर पर उठा लेता है, और मैं हंस देती थी। देवर लंडा बाजार में गर्म कपड़े बेचता था। कोई चीज़ इसको पसंद होती तो मेरे लिए ले आता और कहता, भाभी आज ये ट्राई करें, आप इसमें कतरीना लगेंगी, आप इसमें देखना फलां अदाकारा लगेंगी। इसकी बेतुकी बातों पर मैं सिर्फ हंसती रहती थी कि तुम पागल हो, रिजवान कपड़े पहनने से भला हम थोड़ी इन जैसे हो जाएंगे। रिजवान ने कहा, भाभी आप भी ना, आप इनसे बढ़कर हसीन और नेक सीरत हैं। इनकी असल जिंदगी कभी आप देखें, फिर आपको अंदाजा होगा कि हकीकत का। देवर बातें बनाने में माहिर था। अक्सर इब्रार कहते थे, ये बहुत बोलता है और तुम हो कि अदन बस इसकी सुनती रहती हो, कभी डांट भी दिया करो, ख्वामखा सर पर ना चढ़ाया करो। देवर की दुकान के हालात खराब होने लगे थे। इसका कारोबार अचानक ही नुकसान में जाने लगा था। कई बार वो इसका जिक्र मेरे सामने कर चुका था, मगर मैं कौन सा कमाती थी जो इसकी मदद करती।
कई बार देवर से कहा कि इब्रार से मदद मांग लो तो वो मना कर देता कि भाभी नहीं, मैं ये खुद अपने सर पर करना चाहता हूँ। मेरे पास 30,000 पड़ा हुआ है जो मैंने महफिल पढ़कर जमा किए थे। मैंने वो पैसे इसे दे दिए कि तुम इससे कुछ काम चलाओ। इसे डर था कि कहीं भाई को पता चल जाएगा। मैंने भाभी से छुपकर पैसे लिए हैं तो वो बहुत डांट देंगे। इसकी परेशानी भांप कर मैंने ये राज रखने का वादा किया था। मेरी सास तो उम्रे पर चली गई थी। इब्रार के दफ्तर में इसकी कुरानंदाजी में उम्रे की टिकट निकली थी, जिसके बाद इन्होंने अम्मी को उम्रे पर भेज दिया था। देवर की दुकान बेहतर हो चुकी थी। वो रोज नया माल दुकान पर लगाता तो हाथों हाथ बिक जाता था। इसने मेरा उधार भी किस्तों में चुकाना शुरू कर दिया था। मैं खुश थी कि चलो देवर का कारोबार दोबारा जमने लगा है। रिजवान को मैं हमेशा छोटा भाई समझती थी। मेरा अपना तो कोई भाई नहीं था, ताहम इसको भाई का दर्जा देती थी। एक दिन देवर दोपहर को ही दौड़ा दौड़ा घर आ गया और कहा, भाभी ये देखें, कोट में आपके लिए क्या लाया हूँ। ये कोट किसी अर्बन का मालूम होता है, कितना खूबसूरत है। अगर आप इसको पहनोगी तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। देवर पहले जो भी सामान लाता था उसमें से गर्म पानी से धोकर इस्तेमाल करती थी, मगर कोट इतना खूबसूरत था कि मैं भूल गई कि मुझे इसे धोकर इस्तेमाल करना है। देवर ने कहा, भाभी अपने शोहर नामदार यानी मेरे भाई की मौजूदगी में पहनना, फिर देखना वो आपसे कैसे फरमाइशें करते हैं। इसकी इस बात सुनकर मैं झीम सी गई और डांट कर चुप करवा दिया। कोट लेकर मैंने कमरे में रख दिया और इसी दिन से इब्रार के घर आने से पहले पहन लेती थी। इब्रार मुझे देखकर कहा, अदन अभी तो मौसम नहीं है, तुमने ये क्यों पहन रखा है कोट? कम से कम मौसम तो बदलने दो। ये कोट सर्दियों का है और अभी सर्दी शुरू नहीं हुई। मैंने इनकी बात सुनकर थोड़ा नाराज होकर कहा, जिसे देखते ही कहने लगे, बाबा कोट बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम आज मुझे मेरी मनमर्जी करने दो। मैं इनके इरादे भांप चुकी थी। तभी फौरन उठकर कहा, ये तो देवर की फरमाइश थी कि आप जब आएं तो मैं इसे पहनूं। इब्रार सुनकर कहने लगा, हाँ देवर की ही फिक्र है, शोहर की फिक्र नहीं है। शोहर की बात मानकर इब्रार के आने से पहले मैं कोट पहन लेती थी। एक दिन शोहर दूसरे शहर काम के सिलसिले में गए थे कि मैंने भूल कर कोट पहन लिया और काम खत्म करने लगी। रात को जो ही काम खत्म करके मैंने कोट देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इतने अरसे में पहनने के बावजूद कभी मैंने नोट पर ध्यान नहीं दिया था। कोट के अंदरूनी जानिब जेब लगी थी जिसमें सोने के जेवरात थे। जो ही मैंने सामान निकालकर बेड पर रखा तो खाली सोना देखकर मेरी आंख हैरान रह गई। मैंने कोट की बकिया जेब भी चेक की तो मुझे अंदर से कागज मिला जिससे शायद प्राइस बॉन्ड था। वो सब मैंने संभाल कर रख लिया। अगली शाम को इब्रार जब घर आए तो सारा माजरा उनको सुनाया। इन्होंने रिजवान को बुलाया और चीजें दिखाई। सोना शायद 5 से 6 तोला था। वो प्राइस बॉन्ड भी निकलने वाला था और वो खुशकिस्मती से पाकिस्तान का ही मालूम होता था। देवर और मैं समझ चुके थे कि अर्बन औरतें अपनी कीमती अशिया अपने पास अक्सर अपने लिबास में छुपाकर या बतौर मदद के तौर पर रखते हैं, क्योंकि अरबी जब मर्जी इनको छोड़ देते हैं तो वो पहले से ज्यादा कीमती अशिया इनकी खू कर लेती होंगी। इब्रार ने मुझे शाबाशी दी और साथ ही हंसकर कहा, भाई अदन के कोट ने इसको फायदा दिया है, अमीर हो गई है ये तो अब। मैं पहले सब कपड़े धोकर इस्तेमाल करती थी, मगर इस बार न जाने क्या सूझी कि यूं ही रख लिया। रिजवान प्राइस बॉन्ड का पता करवा कर कराची पहुंच चुका था। इसके कुछ दोस्त पढ़े लिखे थे जिसमें इन्होंने इसकी भरपूर मदद की थी। वो प्राइस बॉन्ड निकल आया था जिसमें 5 लाख और एक गाड़ी निकली थी। हम बहुत खुश थे। अम्मी भी उम्रे से वापस आ चुकी थी। रिजवान तो मेरा शुक्रिया अदा करते नहीं थकता था। सोना इसने मुझे दे दिया था। ये कोट जब आपका था तो इसमें से चीजें बरामद होने वाली भी आपकी हुई। भाभी, मैंने और रिजवान ने मंसूबा बनाया था कि अब जब भी माल आएगा पहले वो घर आएगा, जिसकी हम दोनों मिलकर चेकिंग किया करेंगे, फिर वो फरोख्त होने के लिए दुकान पर जाया करेगा। इब्रार को भी ये मंसूबा पसंद आया था। अब जब भी सामान आता हम इसकी चेकिंग करते थे। अंदर से कभी बहुत कीमती अशिया तो कभी कुछ सामान मिलता रहता था। वो ज्यादातर मुझे ही मिलता था। रिजवान अम्मी का कहना था, भाभी आप अल्लाह के बहुत करीब हैं इसलिए ही आपको मिलता है। एक और रोजगार हमारा बन चुका था। रिजवान को अब समझ आ रही थी कि इसकी दुकान का सामान हाथों हाथ क्यों बिकता था, क्योंकि इसमें से तो कीमती अशिया जो निकलती थी हम कुछ चीजें जानबूझकर भी छोड़ देते थे ताकि लोगों का एतमाद भी बना रहे।
रिश्तों पर से मेरा इत्मीनान तो तब कर टूट चुका था जब मैं यतीम हुई थी और मेरे सभी रिश्तेदार मुनाफिक निकले थे। किसी ने पलट कर नहीं देखा। वो इत्मीनान दोबारा से मेरी सास, शोहर और देवर ने बहाल किया था। वो मुझे बहुत मान से रखते थे। इब्रार ने मेरी माँ का मुझसे बढ़कर ख्याल रखा था। अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बेटी से नवाजा था, जिसके पैदा होते ही हमारे दिन मजीद बढ़ चुके थे। सास तो हर वक्त शुक्र अदा करती थी कि इसने मेरा इंतखाब बतौर बहू करके अपने ख़ानदान को संवार दिया है। रिश्ते अगर एतबार यकीन का कत्ल कर दें तो वो भी अपनी मौत आप मर जाते हैं, मगर अगर यही सब कुछ बढ़ने लगे तो इनका हुस्न मजीद निखरता है। रिश्ते हमेशा दो तरफा होते हैं। इसे निभाने के लिए दोनों फरीकैन को कोशिश करनी पड़ती है, जैसे मैंने और ससुराल ने की। मेरी माँ का इंतखाब मेरे लिए दुरुस्त था। बाज़ औक़ात खुशियाँ हमारे दर पर खुद दस्तक देती हैं, मगर हमें इनकी खनक तब सुनाई देती है जब वो जा चुकी होती हैं। इसलिए जो है इस पर शुक्र करें ताकि खुशियाँ आपका दर कभी ना छोड़ें।